evening. We have the pleasure of hosting our esteemed guests today in this dialogue around the Data Protection Bill 2020. We're joined by prominent industry players who have relevant thoughts on this. I'll introduce them very, very quickly. Starting off with the Junaid Imam Saab, who's member IT. He's an important part of the IT industry for more than 22 years. He's leading the National Digital Transformation Policy as well, and has been extremely helpful in involving the industry specifically on this data protection bill as well. So thank you, sir, for taking the time and being so inclusive of the industry and always giving us a platform to share our thoughts and ideas with you. We also have Nighat Datt with us. She's the founder and executive director at the Digital Rights Foundation, a research-based advocacy focusing on ICT to provide human rights, democratic processes, and digital governance. She's also, I think, recently made us all proud by being on the Facebook advisory board. I'm sure we'll talk about that a little bit as well. Then we have Badr, he's co-founder at Fishery. Is that how you pronounce it, Badr? I hope I'm not mispronouncing it. A pay-as-you-go e-commerce store builder. He also serves as executive in residence at Lunds University and represents Pasha at the National E-Commerce Council constituted by the Ministry of Commerce. Thank you, Badr. You've been a huge supporter through the years for the tech industry in Pakistan, and we welcome you to this. And then last but certainly not the least, Saifullah Khan Saab. He's an international trade lawyer and a professional accountant with more than 20 years of practical experience in WTO laws, antitrust and competition law, e-commerce and trade agreements. Saifullah Saab and his entity have been super helpful in providing Pasha with a legal viewpoint around not only the data protection bill, but also around other legal matters that can help provide a governance framework for the industry. So thank you, everyone, for taking the time. Once again, really appreciate it. I would sort of kick off asking the question to Junaid Saab and ask him to sort of elaborate a little bit around what the data protection bill entails and how has it been envisioned to help and progress the industry through this particular legislation. Junaid Imam Saab. Okay. Thank you, Zubair, for inviting me. I'll just give you a brief that this bill has been lingering on in different government quarters for last, I think, over 3 years. And as we all know, data is the oil of future. So if you look at the oil, whoever owns the oil, the state that owns a well or the oil, gets the benefit of the oil in terms of monetary and everything. But here if you look at the situation in Pakistan, if the data is oil, but the beneficiary of that data is not necessarily the owner of that data. So this personal data protection bill aims at empowering and giving the confidence to the individual whose data is being used by any commercial or non-commercial or a government organization. So the basic purpose of this bill is to have the control of the individual on its own data. That's the basic intent of the bill. And then on top of it, the next key things on this data is that the commercial organization or the government organizations who use the data, they should have certain processes, procedures, and guidelines in place to have this data processed and used for their own benefit. If you look at world over, we are lacking behind. Different countries of almost most of the countries have their data protection bills in place, but unfortunately we did not have. So we reinitiated that stalled process of personal data protection. And but fortunately for us, one good
regulation, GDPR, came in between. So we somewhat aligned our initial draft of data protection as well to the, because different interests and the global interests of Pakistan required to some extent align this data protection to the GDPR. So that's the main purpose behind launching this data protection bill. If you talk about this data protection bill, there are 4 or 5 different aspects that we have tried to ensure, and different schemes have been followed to make this data protection bill. And the very first thing that some people have confusion, but it's important to clarify this. There is a difference between data protection and data security. So data security can be one part of data protection, but data protection also requires certain processes, procedures of processing the data by the authorized people. So it's when you look at the overall cycle, it starts off from the data object, the person whose data is to be used. So we have defined the data object as the natural person. So this should also be clarified that no legal person is part of this data protection bill. This is for the natural person. And then we have defined a data controller who acquires the data from the data subject. And then there is a data processor who processes the data. There are certain intermediaries in between, but they will fall between data controller and data processor. For instance, there might be a data collector as well. So a data collector may be considered as a data processor as well. But the important thing is that the definitions have been derived from the GDPR so that it's consistent with the international regulations as well. And the people dealing with the data protection, they have certain global guidelines and experiences available to them to handle this data protection bill as well. So moving forward, once we have defined data object, controller, and the processor, we have defined certain mechanisms for relationship between all these three. The first is to determine how personal data is to be processed. That is defined in this bill, and for what purposes the data should be processed. That's the guidelines are there. And then another aspect is that there are sufficient measures taken by the controller and the processors that the data of the individual is being secured and being processed as per the desire of the person. And then there are certain mechanisms defined so that the transparency and of the data processor can be ensured. And then we have given certain rights to the data object. The data can only be processed with his consent. He can withdraw the data, and if he withdraws a data or if he binds a data controller to process the data in certain limits, then the data controller has to process the data in that limits. So basically, in this data protection bill, individuals are somewhat empowered to guide the data processor and controllers to handle their data as per their own desire. On the other hand, there are certain challenges as well. I think the cross-border data transfer has been a challenge. The regulations is for Pakistan only, how the data has to be transferred over the borders. Then there are certain issues of data classification as well. Then there are issues related to who will govern the regulations, who will be the regulator, who will be deciding if there is a dispute between a data object, data controller, or processors. So these things have also been defined in this bill. One important thing is this, initially we are moving towards an act. This is not regulation. So don't compare this with the regulations, maybe GDPR or with other countries. This is right now we are moving for a act. So once this act is in place, then we will go for the regulation. So we are moving in a step-by-step direction. It's a new thing for us.
There are a lot of stakeholders. We want to keep all the businesses, SMEs. This personal data protection bill has an implication on both SMEs, big, large companies, telecom operators, international social media companies that are working in Pakistan. So one challenge that we are facing, that if you give a license to an operator or any company, they have the regulatory framework, they have the regulatory fees that they have to pay, so they can make a business case out of it. But here, the businesses are already into operations. So we don't want to make any regulation that is detrimental to the businesses that are already. So it's a balance need to be struck in the form that it still remains good, beneficial for the businesses. Rather, it generates more business for the commercial entities, and at the same time, it protects data of individuals as well. So we are right now in the process of consultation, right? I think this session is also part of it because industry is consulting on it. After this current consultation, we might engage into further consultation if we see because there are different stakeholders having different interests. Individual has its own interest, and commercial businesses, local businesses have their own interests. The international companies have their own interests. So our role is to balance between all and get to a bill which is beneficial for all. So we are moving in that direction, and we need your support. And these type of consultative sessions, I believe, will help us in formulating regulation that best fit the overall ecosystem. Please. Thank you, Junaid Sab. Nighat, if you want to comment a little bit on the same question, how do you see from your vantage point significance of any such legislation, as well as, obviously from your regional exposure as well and familiarity with other global such legislations? So I think Junaid laid out really good foundation why Pakistan needs a data protection act. एंड आई थिंक इस पर कोई दो राय हैं भी नहीं कि पाकिस्तान को ये चाहिए था या नहीं चाहिए था, वो जरूर चाहिए था। और ये सिर्फ पिछले कोई 3 सालों से एफर्ट्स नहीं हो रही हैं। मुझे याद है कि 2005 में सबसे पहला डेटा प्रोटेक्शन का ड्राफ्ट आया था, जो कि कहीं पे उस पर फर्दर डिस्कशन नहीं हुई, और उसके बाद फिर डिफरेंट गवर्नमेंट्स में इसको पुश किया जाता रहा। स्पेशली जो मेजर पुश आया था वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के बाद आया था कि अगर आप एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें बहुत से जो साइबर स्पेस में डिफरेंट एक्ट्स को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन कहाँ पे। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो डिबेट हुई थी वो डेटा प्रोटेक्शन के कानून के हवाले से हुई थी, और उसकी एब्सेंस में भी। आई थिंक इट वाज आल्सो अ गुड टाइम बिकॉज GDPR जो है वो भी इन्फोर्स हो रहा था, और वो वाली भी डिस्कशन जो है वो ना सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में बात हो रही थी। और GDPR जो है वो मेरा जाती तौर पे एज एन एक्टिविस्ट एंड प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी के ऊपर जो हम लोग पिछले कई सालों से काम करते आए हैं, और डेटा प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान में एक हम लोगों की कोशिश रही है बाकी सिविल सोसाइटीज के साथ, वो यही कि बेशक GDPR एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और हम हमेशा उसको कोट करते आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक ऐसा मुल्क जहाँ पे पहले प्रीवेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इटसेल्फ क्लियर नहीं है। मतलब हम अगर वेस्टर्न कल्चर्स को देखें तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल की प्रीवेसी जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवेसी जो है वो ऑलरेडी एक उनके कल्चर में, उनकी सोसाइटीज में एम्बेडेड है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तो इवन जो डेटा सब्जेक्ट्स हैं जिनके राइट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो भी उनको भी नहीं पता कि कौन सा डेटा जो है वो अगर उसका ब्रीच होगा तो उनका किस तरीके से राइट वायलेट होगा। एंड आई थिंक इट्स also very important कि while we are using all these like very difficult tech terms around data, I think ये भी बहुत जरूरी है कि हम आम फहम अल्फाज में उन डेटा सब्जेक्ट्स को बताएं, ये आम जो यूजर्स हैं कि किस तरीके से उनका डेटा जो है वो
उनसे बिलोंग करता है। और पाकिस्तान का जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें ऑलरेडी जो प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है, ऑल्दो वो ऑफलाइन स्पेस पे ज्यादा अप्लाई होता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन अगर की जाए तो डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून अब बनने जा रहा है वो उसी की ही एक एक्सपेंशन आप समझ लें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है, व्हाइल जुनैद इज हियर, आई थिंक देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैं अपनी बात करते करते मैं कहना भी चाहूंगी कि इसमें अभी चूंकि कंसल्टेशंस हो रही हैं, बहुत से इदारे अपनी फीडबैक दे रहे हैं, उसमें कंपनीज भी हैं, उसमें कॉरपोरेशंस भी हैं, उसमें सोशल मीडिया कंपनीज भी हैं। तो मेरा ये, और अभी जो डेफिनेशन आ रही है इसमें डेटा प्रोसेसर और कंट्रोलर की, उसमें जो मेरे नजदीक में इंटरप्रिटेशन अगर देखूं तो उसमें तमाम इसमें लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन और इदारे। तो मेरा ये सवाल है कि जो इदारे पब्लिक बॉडीज जो हैं, जैसे नादरा है या जैसे आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सेफ सिटी, जो कि मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो सिटीजन्स का कलेक्ट करते हैं, रिटेन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या वो भी इस एक्ट में उनका भी वो भी शामिल है? और दूसरी चीज ये कि जो एक थोड़ा सा जेंडर पर्सपेक्टिव में लाना चाहूंगी कि चूंकि जेंडर के लेंस से हम लोग हमेशा डिजिटल राइट्स के काम को देखते आए हैं, तो ये कि while we are talking about all the corporations and SMEs and small businesses and tech industry, I think it's also very important कि डेटा सब्जेक्ट्स में जब हम सिटीजन्स को देख रहे हैं तो हमें वल्नरेबिलिटी के लेवल्स भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अगर जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सा ऐसा डेटा जो पिछले चंद सालों में हमने देखा सोशल मीडिया पे हमें नजर आता है, कहाँ से लीक हुआ। आप नादरा के देख लें, आप सेफ सिटी की कुछ वीडियो क्लिप्स लीक हुई, तो उसमें जो सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं वो खवातीन या ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं। तो आई थिंक ये जो कानून बनने जा रहा है, ये when we are talking about natural person, basically it covers everybody and it's a very good point कि हम लोग जो सेंटर हमारा इस ड्राफ्ट का है वो अगर हम बाकी स्टेक होल्डर्स को रख रहे हैं तो हम ह्यूमन राइट्स को भी एट द सेंटर ऑफ दिस ड्राफ्ट जो है वो हमें रखना बहुत जरूरी है। तो that's from my side, but Junaid, I have this question from you and maybe जो हमारे मॉडरेटर है वो आपसे पोस्ट करें ये क्वेश्चन किसी टाइम पे। No, thank you, Nigat. Junaid, I have to leave, तो मैं quickly निगत के बड़े pertinent questions थे तो मैं आंसर कहता हूँ। एक जो गवर्नमेंट इदारों का निगत ने क्वेश्चन पूछा, तमाम सरकारी इदारों पे भी एप्लीकेबल है, उन्हें भी इन रेगुलेशंस के अंदर आना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा डेटा उनके पास है, सो ये डेफिनेटली उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और ड्यूरिंग द एवोल्यूशन हम इसको इन रेगुलेशंस को ऐसे करेंगे कि दिस शुड बी फॉर ऑल। सो लाइक निगत मेंशन, टीचर्स पास में हुई हैं, हमने देखी हैं। सो ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के इदारे जो कितना मैसिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो इस एम्बिट से बाहर। सो एक पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट जो जेंडर वाला बात किया, वी आर 100% ऑन दिस के मार्जिनलाइज्ड जो हमारी कम्युनिटी है, बल्कि अगर आप इसमें थोड़ी सी डेटा की क्लासिफिकेशन देखें तो हमने थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश की है कि किस किस्म का डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल और मे बी फ्यूचर में सीक्रेट होगा, और उसमें ये जो मार्जिनलाइज हमारी सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं इनका बड़ा स्पेशल हमने फोकस रखना है। विमेन बहुत बड़ा सेगमेंट है और अभी हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं की है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि डेटा क्लासिफिकेशन हो सब्सिक्वेंट स्टेप में। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हम स्पेशल प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं, जैसे रिसेंटली एक हमारा बेटी प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है फॉर एम्पावरिंग विमेन। तो हम खुद ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी, विमेन की एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा होती है और मार्जिनलाइज कम्युनिटी की, कि उनको अपने राइट्स खुद नहीं पता होते। सो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए ये जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, आईटी हैं, इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो हम खुद रियलाइज़ करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। जो कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन हमारी सोसाइटी में होती रही है, टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम इसे मार्जिनलाइज कर सकते हैं। तो सेम इज़ द केस ये डेटा प्रोटेक्शन बिल, ह्यूमन राइट्स बहुत फंडामेंटल है इसके अंदर, हमारे स्टेक होल्डर्स के अंदर। हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट सेक्टर से भी जो फीडबैक आ रही हैं उनको हम बहुत सीरियसली इसके अंदर रखते हैं। बेसिक पर्पस ही इंडिविजुअल्स या जो नेचुरल पर्सन है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का है।
वो जिस भी फॉर्म में हो या जिसके लिए मैं अगर इंडिविजुअल हूँ, हर एक के लिए क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बीइंग विमेन आप जनरली एक खास क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विल सर्व द पर्पस। तो हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करेंगे तो उसमें ये जो एस्पेक्ट निगत ने हाईलाइट किया है, ये डेफिनेटली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। और एक जो चैलेंज हमें आ रहा है, जैसे जो पीका है या दूसरे हैं क्राइम से रिलेटेड हैं, बट अगेन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर कोई लेजिस्लेशन, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। वी नो देयर आर चैलेंजेस लाइसेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। देन जो पेनल्टीज हैं, पेनल्टीज क्या करनी है, अगर आप इंडिविजुअल से पूछे जिनको अवेयरनेस है थोड़ी सी, ये एक निगत का बिल्कुल राइट पॉइंट है कि हमारे लोगों को खुद ही अवेयरनेस नहीं है कि हमारे अपने राइट्स क्या हैं। हम जो डेटा हमारा मिस यूज हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। तो इसीलिए हमने ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तकरीबन 1.5 से 2 साल भी एक्सपेक्ट कि ये रेगुलेशंस और इम्प्लीमेंटेशन तक आएंगे। उस दौरान में हमें डेटा ऑब्जेक्ट्स को, अपने सिटीजन्स को अवेयर भी कराना है। अगर उनको अवेयरनेस नहीं होगी तो ये मिसयूज होता रहेगा। सो इट्स दे आर एक्चुअली, हम ऑडिटर्स और बहुत सारी रेगुलेशंस तो लेके आएंगे, जो कि जो भी अथॉरिटी या रेगुलेशंस को देख रही होगी बॉडी वो देखेगी, लेकिन एक ऑडिटर एंड यूजर खुद है। तो एंड यूजर की ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपना डेटा प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो सिर्फ तब हो सकती है जब उसको अवेयरनेस हो। सो देयर विल बी अवेयरनेस कैंपेन्स एज वेल। ये सिर्फ रेगुलेशंस अप्लाई करके नहीं होगा, ये गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक, इन सिटीजन सबको मिल के, हमें अगर इसे इफेक्टिव बनाना है तो हमें सबको मिल के काम करना होगा इस पे। और दैट्स व्हाट अभी हमारा मिनिस्ट्री से भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम कंसल्टेशन के अंदर एंगेज हुए हैं। फर्दर कंसल्टेशन सेशंस होंगे, होपफुली जब फाइनल ड्राफ्ट एक होगा तो यू विल सी कि वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल बैलेंस हो सकता है, वी विल स्ट्राइक के हर एक के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। Vinit Saab, I know you had to run, so if I can just borrow 2 more minutes and ask a pertinent question that has come up a number of times, and that is around, I'm sure you've heard this from other stakeholders as well, is around some vagueness in terms of specification in the bill, around procedures, also around penalties, और उनकी imposition कैसे होगी. So that we're hearing a lot of feedback from the industry on that, from the tech industry. कि इसमें तो उस पर अगर क्विकली आप थोड़ा सा कमेंट कर दें, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। देखिए, मैं एक चीज जो मैंने क्लैरिफाई की थी कि इज एन एक्ट, दीज आर नॉट रेगुलेशंस। इस एक्ट के जब हम सब कंसल्टेशन के बाद एक एक्ट फाइनल कर लेंगे, गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी, तो एक बॉडी बनेगी। रेगुलेशंस जो हैं, जो माइक्रो लेवल और स्पेसिफिक्स में रेगुलेशंस हैं, वो बॉडी में, उसके लिए गाइडलाइंस इस एक्ट में होंगी। यानी कि वो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क मौजूद होगा, उसमें उसके बीच में रहते हुए काम करना होगा। बट स्पेसिफिक प्रोसेसेस और एसओपीज या जो और माइक्रो लेवल डिटेल्स हैं, वो जो रेगुलेशंस बनेगी वो उसके अंदर कैप्चर होगी। सो प्रॉब्ली, लेकिन क्योंकि एक्ट के फॉर्मुलेशन में भी हम कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कि डेट्रीमेंटल लोगों के लिए, बिजनेसेस ही चोक हो जाएं। बट माइक्रो लेवल वो एक सब्सिक्वेंट स्टेप में जब रेगुलेशंस होगी तब होगी। ठीक, makes sense. Moving on, Saifullah Saab, if I may ask you from a legal standpoint. I would just beg leave, or thank you very much for your time. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, you can reach me. We'll be more than happy to respond to them. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So Saifullah Saab, very quickly speaking about from a legal standpoint, how you've seen this particular legislation or act, as Junaid Saab was referring to, और आपने और भी आपने comparative analysis भी किया है और regional laws का. What are some of your observations and things that you in terms of impact, in terms of areas that this looks to address? Let me start from the timing. Actually, the timing of introducing this bill is, I think, perfect now, because we have already discussed there are a lot of jurisdictions who already have the data protection law for many years. For example, Malaysia has the law for more than almost 10 years now, and many other countries, the GDPR is for many years now in place. So the timing for us is important, and I think just Nigat has already pointed out that it's an obligation
on us as well. According to Constitution, the Article 14, it provides a fundamental right actually for the data privacy if you properly elaborate it and if you properly look into it in detail. So it is our obligation to provide this protection, the data protection and privacy to the general public, the individual, which is the data subject. And IT and ITES enabled services are now growing exponentially. So collection of data, processing of data has become now much more easier than before. In such a scenario, in such a space, you need laws and regulations to properly understand and to properly convey to the data subject, data controller, data processor, other stakeholders, including the public sector organization, like Junaid has pointed out. It is applicable on everybody. So you need legal certainty to let people know about their rights, their obligations, and that will ultimately, I tell you, lead to more innovation in Pakistani businesses. Even for the e-commerce business and other tech companies, they will be more innovative than before. So ITES enabled services promotion requires this legislation. Timing is good. It provides the fundamental rights in our constitution, and we have to work with the other companies abroad. We have to work globally. We have to trade globally. We can't do that unless we have a proper legislation in place. In many regulations, in many laws, in different jurisdictions, I'll give you just one example about the transfer of data outside your country. In a number of laws and regulations around the world, they say that they will allow transfer of data from their country to the other country if that other country has a similar level of protection available in their country. So it implies that you will have more business if you have this law in place, if you have a proper implementation, enforcement of this law in place. The companies abroad would like to work with you, knowing the fact that in Pakistan, you have a very good piece of legislation which is being enforced properly. In other legislation, I tell you, there are a lot of commonalities, there are a lot of things. And one very interesting thing is, this law is not a requirement of any international treaty or any international agreement entered into by Pakistan or any other country. There is no model law available by UN CITRAL. It is not under the WTO agreements, but still, very, very interestingly, the basic structure of data protection laws in many countries, almost every country, is the same. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. देखें, जब कोई हम इंटरनेशनल ट्रीटी होती है या हम WTO का कानून है, उनका एक मॉडल लॉ होता है, आपको उसी लॉ को देखते हुए अपना कानून बनाना होता है, तो उसमें हार्मनी होती है, कोहेरेंस होती है, विच इज़ वेरी नेचुरल. डाटा, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं, जो एक्ट हैं, रेगुलेशंस हैं दुनिया भर में, वो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए कंप्लायंस में नहीं है, ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई मॉडल दिया उनको, बट स्टिल द बेसिक प्रिंसिपल, द बेसिक मॉडल एंड स्ट्रक्चर इज द सेम. सो हमें वही फॉलो करना है, हमें उन्हीं लाइंस के ऊपर रेगुलेशंस बनाने हैं. जुनैद साहब की कमिटमेंट थी, वो चले गए, वरना मैंने उनको ये 2-3 चीज़ें सवाल करनी थी कि ऑल्दो रेगुलेशंस बाद में बनेंगे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपके जो बिल है इसके अंदर बहुत सी चीजें मिसिंग है, जो आपने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो आके रेगुलेशन बना देगी, रूल्स बना देगी. दैट इज नॉट गुड इनफ. अगर आप मलेशिया Sorry to interrupt you. I have a separate question where I'm going to ask all three of our panelists for recommendations. So if you can just, I'll do that. तो आप जुनैद साहब चले गए हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हम उनको तंग करते रहेंगे. हम उनसे बड़े क्लोजली इन कांटेक्ट हैं और हम उनको आपकी रिकमेंडेशंस और बाकी पैनलिस्ट की रिकमेंडेशंस बिल्कुल पहुंचाएंगे. तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ वी डूइंग दिस. जी बिल्कुल. So, Niket, before I come to you and talk a little bit about what Saifullah Saab was discussing around the regional elements of this and how it helps us compete, so as to speak, regulatorily speaking, globally, I want to talk to Badr about the impact or potential fallout is a strong word, but I'll use it for a lack of a better expression, on the e-commerce industry of Pakistan. Because one of the largest components of our IT sphere is that e-commerce environment. We've had some really, really fabulous success stories when it comes to that.
So if you can quickly talk a little bit about in a couple of minutes around the impact that. जी, thank you so much, Mujib. I think Saifullah साहब जो बात कर रहे हैं very very important. I just want to endorse that fact as well जो आप आखिरी बात करना चाह रहे थे, which was about कि कुछ चीजें जो I think so going back one step back on the proposed bill, I think हमें baselines set करनी चाहिए. We should not deep dive, but baselines को miss भी नहीं करना चाहिए. I think there are certain baselines जो इसमें clarify नहीं हुई हैं और कुछ चीजों के बहुत deep चले गए हम. So which is very inconsistent. I think हर चीज का high level 30,000 feet view इस पे होना चाहिए था. और फिर हर चीज जो रेगुलेशन बनाने का प्रोसेस है उसको भी डिफाइन करना जरूरी है कि ये ना हो कि वो यूनिलैटरली पब्लिक सेक्टर के एंगल से आ जाए या वो उसमें स्क्यूडनेस या बायस्डनेस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा. आई थिंक दैट्स आल्सो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू डिफाइन कि ये कैसे होना चाहिए. सो आई थिंक एक तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है विच इज वेरी चैलेंजिंग. द अदर इज मोर देन ई कॉमर्स. आई थिंक जिस भी ई कॉमर्स इज समथिंग विच इज विजिबल टू अस एक्चुअली. मगर अगर आप देखें बैंकिंग भी उतनी इम्पैक्ट उस पर भी होगा बिकॉज वहां भी पर्सनल डेटा आपका यूज हो रहा है. इसी तरह बेशुमार और जगह रेगुलेशंस हैं जहां अब आपका डेटा कंप्यूटर के थ्रू अगर कहीं भी ट्रांसमिट हो रहा है तो वो इस लॉ के अंडर आ जाएगा. सो दैट्स अ प्रीटी क्रिटिकल सिचुएशन. और उसमें एक चीज जो और इस रेगुलेशन में देखी जा रही है, प्रपोज बिल में देखी जा रही है, वो ये है कि it's defined in a very simplistic old school view कि डेटा बाहर नहीं जा सकता. अब in the new cloud technology infrastructure, complex data structures, it's very complex to understand कि डेटा कैसे बाहर जाएगा, कैसे वापस आएगा, कोई क्लैरिटी नहीं है. अगर नहीं है तो रेगुलेशंस में कैसे डिफाइन की जाएगी. सो फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ एन SME जो आज एक चप्पलें बनाता है, पेशावरी चप्पलें बना रहा है या ब्लू पॉटरी की चीजें बना रहा है या कैमल स्किन के लैंप्स बना रहा है. अब वो जाके एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर खड़ा करता है और उसके थ्रू वो बेचना शुरू कर देता है एक्सपोर्ट में. अब उसकी कंप्लायंस ओवरहेड क्या होगा कि मैंने क्या क्या चीजें मैंने देखनी है और क्या जिम्मेदारी उस प्रोवाइडर की है और क्या जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट वैसे ही इंश्योर कर रही है बेसलाइन. सो वेरी कॉम्प्लेक्स. और जो निगत ने बात की कि आम फहम में एक आम SME और विमेन एंटरप्रेन्योर या इंडिविजुअल यूथ को हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी कि उसकी लाइबिलिटीज और राइट्स कहाँ हैं, बोथ एज ए यूजर एंड एज ए मर्चेंट एज वेल, जब वो दोनों रोल्स डिफरेंट हैट्स पहन रहा होगा. तो ये क्लैरिटी लानी भी जरूरी है. सो आई थिंक बहुत सारी चीजें जिनकी हम डेप्थ में चले गए. फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल फर्म टू हैव प्रेजेंस इन पाकिस्तान विच इज टू डीप, rather than saying कि उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए और उसका एक SOP बना लें. आई थिंक सो वी हैव गॉन डीपर देयर वर्सेस जो निगत ने बड़ी क्लैरिटी की पूछा कि क्या गवर्नमेंट बॉडीज भी इसको सब्जेक्ट होंगी टू दिस बिल. तो वो क्लैरिटी क्यों नहीं है कि एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड. और जिस तरह सैफुल्लाह साहब ने कहा कि वो उनका पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है कि कुछ चीजें जो रेगुलेशन में नहीं जानी चाहिए कुछ बिल में रहनी चाहिए और कुछ चीजें जो रेगुलेशन में जानी चाहिए हमारे हिसाब से उसकी क्लैरिटी लानी जरूरी है. कैसे ड्राफ्ट होगा, कितना टाइम फ्रेम होगा, उसकी कंप्लायंस का ओवरहेड का एक सर्टेन डेफिनेशन और जो गवर्नमेंट की बाकी बॉडीज हैं वो कितना सपोर्ट दे सकेंगी. सो अभी ये भी एक चैलेंज है कि एक नया रेगुलेशन आ जाती है, एक नई पॉलिसी आ जाती है, एक नया बिल आ जाता है, बट इवन एग्जिस्टिंग government infrastructure and supporting bodies cannot even support it. तो वो जो SMEs हैं या एक्सपोर्टर्स हैं या जिन्होंने ई-कॉमर्स करना है या डेटा किसी तरह से भी प्रोसेस करना है, उनकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, उनको कौन एक्सप्लेन करेगा. तो कैपेसिटी बिल्डिंग का टाइम रखना बड़ा जरूरी है. इस बिल में 1 से 2 साल का टाइम फ्रेम डिफाइन किया गया. सो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये साइबर क्राइम में शायद निगत ज्यादा बेहतर से बात करती है. साइबर क्राइम में जुडिशरी के लेवल पे और बाकी जगहों भी इशू आया था कि जिस तरह हमारी बैंकिंग कोर्ट्स हैं, जिस तरह हमारी डिफरेंट कोर्ट्स हैं फॉर डिफरेंट स्पेशलिटीज, साइबर क्राइम कोर्ट्स नहीं है अभी. और उसकी वजह से हमारे यहाँ क्योंकि वो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट नहीं हुई, लॉ एग्जिस्ट कर गया है बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू लिटरली लेवरेज इट और अंडरस्टैंड इट और इवन कॉम्प्रीहेंड इट. एंड नॉट इन द रॉन्ग सेंस, आई एम जस्ट सेइंग कि आई थिंक हमें इसको होलिस्टिक व्यू में देखने की जरूरत है. और थोड़ा सा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने पूछा ई कॉमर्स में इम्पैक्ट करेगा कि अगर मैं क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज करता हूं तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा कि SME मर्चेंट पे उसकी लाइबिलिटी क्या होगी और उस लाइबिलिटी के लिए वो कहाँ से सपोर्ट ले सकता है. तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस लाइक SMEDA एंड ट्रेडिशनल SME सपोर्ट अथॉरिटीज वुड दे बी एबल टू सपोर्ट इट, हु वुड बेटर बी एक्सप्लेनिंग इट. तो आई थिंक ये चीजें हमें थोड़ी सी एड्रेस करने की जरूरत है. इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट ये है कि डेटा लोकली होस्ट भी होगा एक कॉपी उसकी.
again that's something which needs clarity कि I think हमें cross border data के ऊपर clarity further करनी चाहिए. And I'm not saying and being a resident Pakistani I fully support कि हमें data को जरूरत है for cyber crime tracking and other purposes. वो एक उसकी वो जो need है वो वहाँ exist करती है, but I think the way we are approaching it is probably not the best way, and I think that needs to be defined in a better fashion. Yeah, no, thanks for that. And again, as I said, I'll do a quick lightning round in the end to take sort of broad 2-3 things that all our respectable panelists can I just say two things in continuation of with what Badr has just explained about the capacity? Just two small things. Capacity issue जो है एक तो authority के level पे होगा, which will be a big question, I tell you. ये बहुत मुश्किल चीज होगी जब पाकिस्तान पर्सनल डाटा अथॉरिटी बन जाएगी, उसके लोग कौन होंगे, उनका बैकग्राउंड, उनका नॉलेज बेस, वो कैसे चलाएंगे. इट विल बी अ बिग 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 क्वेश्चन. मैंने देखा एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंदर कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको समझ नहीं होती कि हमने काम क्या करना है, हमारा पॉलिसी इनिशिएटिव क्या लेना है, हमारा मैंडेट क्या है, हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं. एक दूसरा, जुडिशियल लेवल के ऊपर भी इश्यूज होंगे कैपेसिटी के. आपको स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल चाहिए होगा कि अगर आपने अथॉरिटी के पास गए और आप उसके फैसले से आपको कोई ग्रीवेंस है, यू नीड अ स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल जहाँ स्पेशलाइज्ड लोग हों. आप एक हाई कोर्ट में चले जाएंगे जहाँ जज ने खुद कभी ये लॉ पढ़ा नहीं है, तो उसका मतलब है कि आपने जो है मैसअप कर दिया सारा. तो आपको एक एग्जैक्टिव YouTube फिर 3 साल के लिए बंद हो जाएगा. जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये किसी ये एक रियलिटी है ना. वी हैव टू फेस इट. इट्स इवॉल्विंग प्रोसेस. लेकिन नई चीज है, हाईटेक चीज है, आईटी बेस्ड चीज है, तो हमें इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की अच्छी कैपेसिटी, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स, जुडिशियल फोरम्स के अंदर कैसे डील करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है. और इस पे हमें बहस करनी चाहिए. इवन ये जो आईटी मिनिस्ट्री के साथ भी है कि वो क्या विजुलाइज करते हैं, उनका विजन क्या है. वो सोच रहे हैं कि अथॉरिटी इतनी कॉम्पिटेंट होगी और आगे ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे, अदरवाइज चीजें स्टक अप हो जाएंगी. सॉरी मैंने भी एक चीज ऐड करनी थी मुझीब. आई एम सो सॉरी. हाय नो. सो एक्चुअली अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो अगर एंड्रॉइड की टीम का कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं होगा तो सारे एंड्रॉइड फोन आपको बंद करने पड़ेंगे. जस्ट इमेजिन जितने हमने सिमें बेची हुई हैं सब बंद हो जाएंगी बिकॉज एंड्रॉइड का डेटा पहले बाहर जाता है और उसकी कॉपी शायद पाकिस्तान में नहीं होती है. सो जस्ट वन सिंपल इम्पैक्ट ऑन एवरी यूजर इन पाकिस्तान. ठीक है. एक जस्ट थिंकिंग, आई एम श्योर निगत एंड सैफुल्लाह साहब कैन प्रॉब्ली एक्सप्लेन एंड कमेंट बेटर ऑन इट फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव. आई एम नॉट अ लॉयर, सो जस्ट माय वेरी बेसिक थॉट कि एक ये चैलेंज भी आता है. दूसरा एक और जो अभी हम बात करें कि कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी जरूरी है, हम ई कॉमर्स के एंगल से जब ई कॉमर्स पॉलिसी पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो वहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स व्हिच इज फार सिंपलर देन दिस, अभी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है कि और उसमें एक और नेक्स्ट लेवल कॉम्प्लिकेशन जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल बाउंड्रीज हैं कि डेलीगेशन जो उन्होंने हमने कर दी हुई है 18th अमेंडमेंट में, उसकी वजह से ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज किसके अंडर आएगी और कौन किसको देख सकेगा, जो कि अभी भी मोस्ट रिसेंटली कोविड के एसओपीज में भी इशू आया. फेडरल मिनिस्ट्रियों ने ओके कर दिया बट प्रोविंशियल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज डिड नॉट कंप्लाई टू दैट. वो उन्होंने कहा हमारा डिफरेंट परव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू इस पे. सो आई एम जस्ट सेइंग कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को पहले सिनेरियोस को समझना, उनके ऊपर डिफरेंट कमेंट्स कर लेना और उसके डिफरेंट यूज केसेस को आइडेंटिफाई करके उस पे कुछ बातें करना जरूरी है rather than rushing into it. I understand we need it and I fully support it as well, but I think we need to do a little bit more homework than rushing into it. Makes sense. Nigat, sorry, I've been wanting to come to you for the last 5-7 minutes. But speaking about what both Badr and Saifullah Sahab was saying, and looking at it from that complexity as well as more regional perspective, what are some of your thoughts around, from your vantage point, अगर आपने देखा है और मुल्कों में इस तरह की चीज़ implement होते हुए और उनको implementation में कुछ challenges आए हों जिनसे आप familiar हों, ताकि हम वो भी record पे ला सकें और incorporate कर सकें अपने feedback में जो हम Ministry of IT को देना चाहते हैं as this industry body. So please, if you can comment a little bit on that. I think different jurisdictions में जो जैसे मलेशिया का सैफुल्लाह साहब ने जिक्र किया, साउथ एशिया में मुझे नहीं पता कि इंडिया भी डीपीए पे काम कर रहा था. आई डोंट थिंक इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ, उनकी भी बहुत बड़ी डिबेट इस वक्त चल रही है डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अराउंड, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस पे उनका जो ड्राफ्ट है वो itself is very problematic. So there have been multiple consultations जो जारी हैं.
different jurisdictions के different मसाइल हैं, and I think it's very important के while everyone is giving the example of GDPR, I think it's also important to look into our own context जो हमारा अपना कॉन्टेक्स्ट है, एट द सेम टाइम हमारी अपनी कैपेसिटी क्या है. सो आई थिंक जो बदर ने बात की, जो सैफुल्लाह साहब ने बात की, आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. कीपिंग ऑल्सो के आप कितना, जब ये लॉ इनेक्ट हो जाएगा, आप कितना टाइम दे रहे हैं डेटा प्रोसेसर्स को और डेटा कंट्रोलर्स को कि वो इसको फुली तौर पे लॉ को अपना सकें और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. बट मुझे एक और चीज ये कि जिस तरीके से बदर ने और सैफुल्लाह साहब ने ऐड किया कुछ जो कमियां हैं, एंड taking away your right of moderation because you asked me a different question, but I think आखिरी कुछ जो मिनट है उसमें मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपके लास्ट पॉइंट पे मुजीब इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पाशा इज वेरी डेमोक्रेटिक, सो फील फ्री टू टेक योर टाइम. Ji, please, absolutely. You should go ahead and talk about the things that you feel are missing. जो कमियां और खामियां हैं और क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, प्लीज. जी, सो चूंकि जुनैद साहब ने ये भी कहा कि ये ना सिर्फ एक वेबिनार है बल्कि हम इसको एज अ कंसल्टेशन भी ले रहे हैं कि कोई फीडबैक अगर आता है तो हम उसको देखेंगे. तो आई थिंक बहुत सी फीडबैक जो है वो इदारों ने भी दी है, आई एम श्योर पाशा ने भी अपनी फीडबैक दी है, नहीं गई वो आम यूजर की नहीं गई, जो हम डेटा सब्जेक्ट जिसको कह रहे हैं. और यही वो बात है कि आप कितनी अवेयरनेस फैला रहे हैं. एक तो ये कि while I am all for data protection law in Pakistan, but I think I have serious reservations that why there is a like a hard push during COVID, जब हम ना तो in person consultations कर सकते हैं, ना हम बाकी लोगों के, मतलब लोगों को इस वक्त अपनी जानों की पड़ी हुई है लिटरली. तो हम लोग इस वक्त ये कानून बहुत जरूरी, और हम ही इसके लिए लॉबी करते आए, हम सारे इदारे. लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि हम इसको रश के साथ जो है पास करें, क्योंकि जो कमियां यहाँ पे हम लोगों ने बात की है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की कंसल्टेशन 2 साल चली थी, और उसके बावजूद एक ऐसा कानून आया जो कि बाद में हमें काफी मसला जिसने दिया, और उसके रूल्स 4 साल के बाद आ रहे हैं. तो जो रेगुलेशन की बात उन्होंने की है जुनैद साहब ने, तो वो रेगुलेशंस कब आएंगे जो कि निटी ग्रिटी को डिफाइन करेंगे, जो यहाँ पे सारे गैप्स हम लोग देख रहे हैं. और एक और चीज ये कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा जो डेटा लोकलाइजेशन है, वो एक बहुत सीरियस एक वो है जिसपे मेरा ख्याल में सीरियस डिबेट होनी चाहिए. 2 और पॉइंट मैं कहूंगी कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इदारे जो हैं, जो कि इस वक्त सबसे मैसिव डेटा जो है वो कलेक्ट और रिटेन कर रहे हैं, इसी कानून में फिर आप फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर भी दे रहे हैं कि वो एग्जम्पशंस करें. तो आप फिर वो फेडरल गवर्नमेंट को सेक्शन 31 में क्यों पावर दे? इसका मतलब वो किसी को भी एग्जम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ये मैसिव पावर है. और फिर सेक्शन 38 में आप फिर फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर दे रहे हैं, बिसाइड द अथॉरिटी जो भी बनेगी, कि आप कोई भी पॉलिसी डायरेक्टिव इशू कर सके. तो ये पैरेलल क्यों इतनी पावर जो है वो आप इस एक्ट के अंडर डिफरेंट अथॉरिटीज को दे रहे हैं. तो आई थिंक बहुत सीरियस कंसर्न्स भी हैं जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म कंसल्टेशन से होगा. और ये कोविड के दिनों में जब हर कोई इस वक्त अपने अपने मसाइल में उलझा हुआ है, ये कंसल्टेशंस को रश ना करें. हम सब चाहते हैं कि हम इन पर्सन मिलें और बैठ के बात करें और हर प्रोविजन को डिटेल में डिस्कस करें. जी, no, spot on, Nighat. You're absolutely you hit the nail on the head. हमने one of the recommendations that we're considering to give, अभी वो finalize नहीं हुई है. We're gonna have a discussion with the Central Executive Committee for Pasha and other stakeholders as well, like Saifullah Saab, and this is also a part of it. वो यही है कि आप एक working group बनाएं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, जिसमें ना सिर्फ पाशा से बल्कि ऑल भी स्टेक होल्डर्स में जो एडवोकेसी कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है इस तरह के लॉज को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक वर्किंग ग्रुप बनाएं और एक लॉन्गर टर्म एंगेजमेंट करें जो वो उन रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करे. बिकॉज I mean, from my vantage point, one of the biggest concerns is that all of you have alluded to it as well, कि आपने एक overarching guidelines तो चलें आप कह रहे हैं कि जी अभी ये एक्ट है, इन गाइडलाइंस को आप जाने दें, लेकिन जब उन गाइडलाइंस की इंटरप्रिटेशन पे कंट्रोल नहीं होगा हमारा, तो फिर and who does that interpretation and how they do it is going to be a very interesting and perhaps very alarming situation. So very, very valid points.
Very quickly, Saifullah Saab, I know in the last question you wanted to share some things that you feel should be done differently. So top 2-3 things जो आपके ख्याल में different होनी चाहिए इस बिल में. बदर मैं यही सवाल लेके आपके पास आऊंगा इसके बाद. मैं पहले कंसल्टेशन पे एक बात कर दूं, ज़रूरी है वो वर्किंग ग्रुप वाला आइडिया आपका बहुत अच्छा है. मैं आपसे रिसेंटली शेयर भी किया था कि नेशनल सिंगल विंडो का जो एक्ट बन रहा है उसका वर्किंग ग्रुप बनाया गया. उसका मैं लॉज एंड रेगुलेशन का वर्किंग ग्रुप का हेड था और हमारी जो है वो मल्टीपल मीटिंग्स हुई और हमारे ग्रुप के अंदर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग थे, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी थे और हर प्रोविजन के ऊपर हमने काम किया. इवन एक्ट की जो ड्राफ्टिंग थी उसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया. हमारी लॉ फर्म ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया FBR के साथ. मैंने आपसे वो लेटर भी एक शेयर किया था. तो वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया एक्चुअली और उन्होंने कहा जी कि आप बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए ताकि इसके लॉन्ग टर्म इसकी इम्प्लीकेशंस होनी है. और निगत की बात बिल्कुल ठीक है, जल्दबाजी ना करें. एक बैड पीस ऑफ लेजिस्लेशन would create more problems subsequently rather than taking 6 to 8 months more in finalizing a law. मैं जो 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ जो जुनैद साहब के सामने रखना चाहता था, बाद में भी हम उनसे कई बात करेंगे मिलके कि चंद इसकी प्रोविजंस जो हैं वो आपको स्टैट्यूट में सब्सटेंटिव प्रोविजन है जो कि लॉ के अंदर होनी चाहिए, बिल के अंदर होनी चाहिए. उनको रूल्स के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, जिसमें एक डाटा लोकलाइजेशन है. अब ट्रांसफर ऑफ डाटा जो है फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, उसमें आपने बहुत ही पोलाइटली सेक्शन 14-15 में उसका जिक्र बस कर दिया है और लेकिन कह दिया कि इसकी जो फ्रेमवर्क है, कंडीशंस है, वो बनाएगी अथॉरिटी. अब मैं आपको इससे मैच किया मैंने कि अगर आप GDPR देखें, मलेशिया का लॉ देखें, ब्राज़ील का देखें, बहरीन का देखें, उन सारे कवानीन के अंदर ये सब्सटेंटिव प्रोविजंस लॉ के अंदर है, स्टैट्यूट में, रूल्स में नहीं है. क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इनको आप कैसे रूल्स के लिए छोड़ सकते हैं? और वो जो उनके लॉ के अंदर प्रोविजन है इसकी ट्रांसफर ऑफ डाटा आउटसाइड देयर कंट्रीज, मोर और लेस सेम है अगेन. तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है ये करना. हमने उन चीज़ों को पढ़ के मैपिंग करनी है और अपने कानून में डाल देना है. इट्स ईजी फॉर अस, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सेकेंडली, डाटा सिक्योरिटी के बारे में भी हमारे पास हमने लिख दिया कि अथॉरिटी बनाएगी, अथॉरिटी करेगी, फाइन. लेकिन अथॉरिटी जो कंसल्टेशन करे स्टेक होल्डर से, ये लॉ में ज़रूर डालना चाहिए ताकि सारों को बुला के उनसे कंसल्ट करें. उसके बगैर मत रूल मेकिंग करें. सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी मैयर की बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशन है, खासतौर पे बदर साहब ई-कॉमर्स बिजनेस के ऊपर. इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस आनी है बहुत ज़्यादा, जो कि बुरी बात भी नहीं है. चंद रीजनेबल होंगी, जो अनरीजनेबल होगी उनको ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इनके बिजनेस पे बहुत इफेक्ट आएगा सिक्योरिटी मेजर्स का. रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की प्रोविजन डाली हुई है इसके अंदर सेक्शन 34(2)(e) और F में. जी, हमारे पास एक सवाल भी आया है फेसबुक पे लाइसेंसिंग से मुतालिक. जी, वो बड़ा स्ट्रेंज है. मलेशिया के अलावा किसी कानून में मैंने नहीं देखा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट, किसी मुल्क कानून में नहीं है. और मलेशिया में भी स्पेसिफिक है सर्टन सेक्टर्स, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और लाइसेंसिंग तो कहीं भी नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी काम कर रहा है IT सेक्टर में, तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो लाइसेंसिंग की हो जाएगी. तो ये भी एक फजूल से एडिशनल रिक्वायरमेंट है. जी, हम PTA की लाइसेंसिंग से पहले ही बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं. जी, तो थोड़ा सा दोस्त सुन रहे होंगे. बिल्कुल, थोड़ा रियलिस्टिक होने की जरूरत है. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज, ये जुनैद साहब ने जिक्र किया है इसका बारे में, लेकिन पॉइंट यही है कि क्लासिफिकेशन वो कैसे होगी ये आप स्टैट्यूट में डिफाइन करें प्लीज, वरना तो डाटा सब्जेक्ट तो मैं भी हूँ, डाटा कंट्रोलर भी मैं बन सकता हूँ. और मजे की बात बताऊँ आपको, हम डाटा कंट्रोलर बन रहे हैं. हम एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन UK की है, वहाँ हम लिखते हैं डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर. उन्होंने हमसे कहा है कि जी क्योंकि हम आपका डाटा जो है जो यूजर्स को देंगे, आपका आर्टिकल, तो यूजर का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे, तो यू विल एक्ट एज डाटा कंट्रोलर एंड यू हैव टू कंप्लाई विद GDPR. So we as a lawyer, as a law firm, we have to comply GDPR law only because our publication will be shared with people in Europe and their details will be shared with us. तो ये तो आपको क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है. इसके अंदर फाइन्स थोड़े अनरियलिस्टिक हैं. मैं जो एक इम्पॉर्टेंट फाइन की बात करूंगा, एक क्रिमिनल जो उन्होंने लिखा है 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, दैट इज वेरी हार्श. अभी हम एक तरफ बात करें, लोगों की कैपेसिटी नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, लोगों को बेचारों को पता नहीं चलेगा उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, आप उनको अंदर करना शुरू कर देंगे 1 साल के लिए. तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है. लोगों को पहले थोड़ा समझाएं, सिखाएं, उनको ग्रूम करें और उसके बाद इस तरह की पेनल्टीज लगाएं. एक कॉर्पोरेट पेनल्टी है, वो कैलकुलेशन वाइज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अजीब सी है. उसमें लिखा है 1% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और 30 मिलियन विच एवर इज हायर. अब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी छोटी SME का टर्नओवर अगर 50 मिलियन है तो उसका 1% बनेगा 5 लाख. लेकिन क्योंकि लॉ कहता है कि 1% और 30 मिलियन विच एवर इज हायर, तो मुझे 30 मिलियन देना पड़ेगा. तो मैं 3 करोड़ देके मेरा ऑफिस बंद हो जाएगा.
तो मेरा SME जो है दैट विल बी क्लोज्ड। तो थोड़ा सा इनको अभी इनसे डिस्कशन करने की जरूरत है कि ये पॉइंट्स इतने इजी नहीं है, इनको थोड़ा सीरियस लें और इनको थोड़ा सा लीनियंट रखें। मैं आपको बताऊं, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कंपटीशन अथॉरिटी के बारे में आप अखबार में पढ़ रहे हैं, आजकल टीवी पे भी देख रहे हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंपटीशन कमीशन ने शुरू में ही अपने कवानीन में इतनी हायर पेनल्टीज रख दी कि जब भी उन्होंने पेनल्टी लगाई किसी ने दी नहीं, सबने जाकर कोर्ट से स्टे ले लिया जी। तो उनके पास आया 1 रुपया भी नहीं और उनका काम भी नहीं चल सका। तो ऐसी चीज दोबारा रिपीट ना करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके चलें। Saifullah Saab, extremely critical points. I know Nigat has an extremely hard stop at 5. I'm sure everybody has other things to do. Nigat, very quickly on this licensing and registration wala regime, would you like to add a couple of points around the significance and again from your vantage point, aap isko kaise dekhti hain before I go to Badr? I mean, I think I agree everything and anything that Saifullah Saab said. I think he actually defined it really well, and I have already said that in the chat. So really, I don't have anything to add into what he has already said. So maybe you might go to the Badr. Chalai, thank you, Nigat. Badr, again from your vantage point, in terms of your review, कुछ चीजों का आपने जिक्र किया और ऐसी कोई चीज जो आपकी नजर में हमें improve करनी हो, and Nigat, again, you please feel free to chime in if something else pops up in your mind around things that need to be added or improved or looked at as we look at this draft. जी बिल्कुल मुजीब, आई थिंक जो अभी कुछ चीजें निगत ने बात की, आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर साइबर क्राइम पीका जो हमारा एक्ट है, कि वहाँ हमने क्या प्रैक्टिसेस की और क्या चैलेंजेस रहे, नॉट इन द रॉन्ग सेंस बट जस्ट लर्निंग एंड इम्प्रूविंग वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जिस उन्होंने कहा 4 साल बाद रेगुलेशंस आ रहे हैं, सो आई थिंक इसी बिल में क्लैरिफाई होना चाहिए। अगर हम क्लैरिफाई कर सकें बिल की इंप्लीमेंटेशन 1 से 2 साल के अंदर हो जानी चाहिए, तो ये भी क्लैरिफाई कर दें कि रेगुलेशन भी 1 साल के अंदर आने चाहिए, और फिर कौन हु विल बी रिस्पांसिबल अगर नहीं आएंगे तो ये चीजें वहां इट शुड बी बायलैटरल इन दैट सेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसी तरह इन गुड फेथ आई थिंक एंड इन ऑल ऑनेस्टी एंड टू सेट द राइट एग्जांपल, इसकी इंप्लीमेंटेशन पहले पब्लिक सेक्टर से शुरू होनी चाहिए। इदारे लाइक नादरा, FBR, स्मीडा वगैरह वगैरह बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, ये पहले 2 साल इन पे इंप्लीमेंट करें, उनकी लर्निंग्स को वापस लेके जाएं, फिर इंप्रूव करें, और फिर प्राइवेट सेक्टर SMEs तो लास्ट होने चाहिए। They are the backbone, but they are the most vulnerable as well. उनके पास dedicated legal support या financial bottom lines इतनी strong नहीं होती हैं, जैसा अभी सैफुल्लाह साहब ने कहा। वो 3 करोड़ का नाम, इसीलिए हमारे SMEs डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे, इसीलिए आज तक हम 20% से कम बैंक इकोनॉमी है, बिकॉज हमने फेयर फैक्टर क्रिएट कर दिया, हमने फैसिलिटेशन नहीं लेकर आ रहे, माइंडसेट नहीं ठीक हमारे सेंस में। सो वी नीड टू इम्प्रूव द फैक्ट कि लोग इसको इसलिए अडॉप्ट करें कि उनकी डेटा प्रोटेक्ट होगा और वो लोगों का डेटा भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे, ना सिर्फ इसलिए कि वो डर जाएं कि जी मैं कल को कैद में चला जाऊंगा। सो पीका में भी जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन चैलेंज ये है कि वो सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटी लेकर आता है, उसमें सिविल पार्ट नहीं है। तो आपने अगर स्पैम कर दिया किसी ने, तो जब तक FIR नहीं कटेगी, रिमांड नहीं होगा, बेल वो प्रोसेस, वो तब तक वो मैं उससे सवाल नहीं पूछ सकता अगले बंदे से। देयर इज नो इन बिटवीन गो टू सिचुएशन। इसमें भी यही होना चाहिए कि अगर हो भी गया, कुछ चीज हो भी गई है, शुरू के कुछ सालों के लिए एक प्रोविजन होनी चाहिए कि जी एकदम ये सारी लाइबिलिटीज नहीं इंप्लीमेंट हो जाएंगी, देयर विल बी ए सिविल प्रोसेस जिसके थ्रू सब एमिकेबली इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मकसद किसी को पकड़ के बंद करना नहीं, मकसद चीजों को बेहतर करना है। सो आई थिंक अगर हम वो माइंडसेट रखेंगे तो हम इन सब चीजों को बेहतर कर सकेंगे। इसी तरह जो निगत ने हाईलाइट किया, टू मेनी अथॉरिटीज एंड विच मीन्स टू मेनी कुक्स, विच मीन्स कि हु विल रन द शो मीन्स हु इज मोर पावरफुल एट दैट पॉइंट इन टाइम, and which means कि हम process oriented नहीं बल्कि person dependent हो जाएंगे। Again, a challenge which we already feel in our current process and our। फिर इसी तरह public sector को किसने बताना है? ये trade association का इतना काम नहीं है, या किसी private sector civil society organization का काम नहीं है, ये government का काम होना चाहिए कि जिसको हम data subject कह रहे हैं, पहले उसको तो inform कर लें, पहले उसको बता तो दें कि आपके अगले आने वाले सालों में आपके क्या implications हैं और क्या rights हैं, कैसे हैं। और उसका मतलब 4 सेमिनार नहीं है, इसका मतलब एक large scale कोविड स्टाइल अवेयरनेस कैंपेन है। इतनी अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद वेयर वी आर टुडे इन कोविड मींस कि वी नीड फार मोर अवेयरनेस सेशंस। सो आई थिंक ये उतना ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, सो वी नीड दैट एज वेल। हम सब सपोर्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर से, और आई एम श्योर दैट इज आज की हमारी सबका टाइम निकालने का और इकट्ठे बैठने का और मकसद भी यही है। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसी तरह जो हमने कुछ चीजें जिसमें क्लियर डिफाइन करने की जरूरत है कि जो रेगुलेशंस हैं वो
किस तरह ड्राफ्ट होंगे, उनका प्रोसेस क्या होगा, और वो डीपीए के ऊपर ना छोड़े जाएं, और डीपीए को कौन अपॉइंट करेगा, उनकी प्रोसेस कैसे होगा, कितनी देर की ड्यूरेशन होगी, कैसे उनको चैलेंज हम करेंगे, और इनकी क्या जरूरत है। जब एग्जिस्टिंग इदारे अवेलेबल हैं जुडिशरी के, हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको आगे क्यों नहीं, बेहतर क्यों नहीं करते, उनकी क्यों नहीं इंप्रूवमेंट लाते। आई थिंक देयर आर अदर क्वेश्चंस इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। इसके अलावा जो मैंने पहले बात की क्रॉस बॉर्डर डेटा, इसी तरह इंटरनेशनल फर्म्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, एंड ठीक है कुछ तो बड़ी कंपनियां हैं शायद, मैं समझता हूँ, बट बहुत सारी छोटी कंपनियां होंगी जो अपना प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करके एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगी, उन पे क्या इंप्लीकेशन होंगी, उनकी कंप्लायंस कॉस्ट क्या होगी, वुड दे बी इवन इनकरेज्ड, और कैसे होगा वो। और बड़ियों के लिए भी ये जरूरी है हमें देखना कि ये ना हो कि हम ये इम्प्लाई कर लें कि उनका अगर एक बंदा यहाँ आ गया, पहली बात वो बंदा यहाँ होना नहीं चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फैक्टर होना चाहिए। अगर वो बंदा यहाँ आ भी गया तो क्या वो बंदा कहीं लीगली उनकी लीगल एंटिटी को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इन द सेंस कि वो लीगली लायबल तो नहीं हो जाएगा इंडिविजुअली, उसकी अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन का इशू तो नहीं आ जाएगा। सो आई थिंक वो एक इशू है। फिर इंटरमीडियरी लायबिलिटी प्रोटेक्शन, जिस तरह कि हमने डेटा के केस में या सोशल मीडिया के केस में भी डिफाइन करवाई थी बैक इन द डे, कि जी अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे आके कोई कमेंट डालता है तो वो कमेंट डालने वाला रिस्पॉन्सिबल है, कमेंट डालने वाली प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इतना है ट्रांजैक्शन का। कि तो आई थिंक वी नीड टू क्लैरिफाई दोस थिंग्स एज वेल, और आई थिंक सैफुल्लाह साहब और निगत उस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। और फिर वही क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल डेटा, ये भी बड़ा जरूरी है कि क्रिटिकल को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है, और फिर सराउंडिंग एंड वो वाला डेटा भी है। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट इन शॉर्ट आई थिंक मेरी दो जो कोर रिक्वायरमेंट सजेशंस हैं वो ये है कि पहले पब्लिक सेक्टर पे अप्लाई होना चाहिए, ताकि हम देखें कैसे प्रोसेस हो रहा है, और लोगों में अवेयरनेस उसी से आ जाएगी जब उनके अपने इदारे वो देखेंगे कैसे उन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, नादरा पे, एफपीआर पे और बेशुमार इदारों पे, लेस्को वगैरह जितनी भी, तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा हमें कैसे बेस्ट प्रैक्टिस में लेकर आना है। और इसी तरह हमें ये भी क्लैरिफाई करने की जरूरत है, जो हमने बात की, कि हमें ये देखना चाहिए कि बिल हाई लेवल रहे, और डीपर डाइव अगर हमने उसमें जाने रेगुलेशंस में, तो फिर सारा कुछ डीपर डाइव में ही रहे। ये ना हो कि हम कुछ चीजें बिल में डीपर डाइव में चले जाएं और कुछ हमने हाई लेवल कर दी जो हमें पसंद थी। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर, ताकि हम बेसिकली मकसद है प्रोसेस ड्रिवन हो, पर्सन डिपेंडेंट ना रहें, और स्क्यूड ना रहें, वो जो बायस आनी है पर्सनल वो एट सम स्टेज उसको अवॉइड। परफेक्ट, थैंक यू ब्रदर। निगत सॉरी प्लीज। हाँ, तीन चीजें बहुत ब्रीफली कहना चाहूंगी। एक तो ये कि यही क्रिटिकल डेटा वाली जो बात है, ये अगेन वो इसमें डेफिनेशन में हम लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं बहुत कंसर्न हूँ इस बात पे कि हम क्रिटिकल डेटा को उस तरह डिफाइन ना करना शुरू हो जाएं जैसे हम नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं। तो फिर ये ना हो कि जो कुछ वो उसको इंटरप्रेट, सोशल मीडिया रूल्स भी हैं जिस पर डिस्कशन हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एक तो ये चीज क्रिटिकल डेटा के हवाले से, दूसरा ये कि मैं ये भी बहुत कंसर्न हूँ कि डेटा लोकलाइजेशन में फिर आप अपने स्टेक होल्डर इंटरनेशनल कंपनीज को या उनको समझ रहे हैं, लेकिन जो डेटा सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं इस डिस्कशन में नहीं आ रहे। और यही मेन पॉइंट है कि जब आप अवेयरनेस रेजिंग कर रहे हैं डेटा सिक्योरिटी, जब ये अगर एक्ट आ जाता है और इसकी इनेक्टमेंट इसकी इन्फोर्समेंट होती है, तो डेटा सिक्योरिटी इट्स अ टू वे स्ट्रीट। ये सिर्फ उन इदारों ने नहीं करना जो कि जिन पे ये लॉ अप्लाई होगा, बल्कि जिनके राइट्स हैं, जो डेटा सब्जेक्ट्स हैं, उन पे भी होगा कि अच्छा आपके क्या राइट्स हैं और आपने अपने डेटा को किस तरह सिक्योर करना है बिफोर यू स्टार्ट गिविंग आउट योर डेटा। सो दैट्स अनदर थिंग। जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि जो कंसेंट वाली बात है, वो अच्छी बात है, इन्होंने कंसेंट को इसमें डाला भी है और थोड़ा डिफाइन भी किया है, लेकिन जो बच्चों के लिए और जो यंग एडल्ट्स हैं बिलो द एज ऑफ मेजॉरिटी, उनके लिए कंसेंट का स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। आप कंसेंट का स्टैंडर्ड सबके लिए एक जैसा नहीं रख सकते, वो माइनर्स के लिए डिफरेंट होना चाहिए। जब आप इस बिल को जब ये दोबारा फीडबैक लें, तो आई थिंक देयर आर दीज कपल ऑफ थिंग्स जो कि वल्नरेबल कम्युनिटी या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को हम देखते हैं, तो उसमें बच्चे भी आते हैं। और आज कल कोविड के दिनों में हम देख रहे हैं कि बच्चे आर मोर they are more like informed than us। तो यही बस चंद मेरे पॉइंट्स थे जो मैं ऐड करना चाह रही थी। Thank you very much, Nigat. And I know you had a hard stop at 5, so thank you very much for sticking around. Saifullah साहब, any point जो आपका रह गया हो before we wrap up? जी, मैं सिर्फ कंटिन्यू करूंगा जो बदर ने और निगत ने कहा। जस्ट फाइनल वर्ड्स, 1 मिनट। जो इम्प्लीकेशन है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यू लॉ, दैट इज एक्चुअली अ मिरर इमेज ऑफ दैट कल्चर एंड सोसाइटी। तो ये जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर वो भी कल्चर नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, अभी हम माइंडफुल नहीं है पर्सनल डाटा के बारे में।
तो डाटा सब्जेक्ट के ऊपर हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर। अगर डाटा सब्जेक्ट ही तैयार नहीं है तो डाटा कंट्रोलर और प्रोसेसर को तो तैयार करना ही है, वो तो ऑब्लिगेशंस कानून ने दे दिए ना। लेकिन राइट्स जो दिए हैं डाटा सब्जेक्ट के इस कानून ने, उस राइट को अप्लाई करने के लिए भी तो उसको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। Until unless we have a lot of sessions, capacity building, इसकी मीडिया पे चलाएं, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। आप टीवी पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह इन चीज़ों को बताएंगे, लोगों को समझ में आएगा। तो इवन इसके लॉ के प्रोमलगेट होने के भी 2 से 4 साल बाद जाके मेरे ख्याल में कोई मेच्योरिटी के करीब हम पहुंचेंगे। अदरवाइज मेच्योरिटी ऑलवेज टेक इवन मोर टाइम इन अ सोसाइटी लाइक अस। In a civilized world where people are more sensitive and mindful of their personal data, they take things quickly, they adopt things quickly. हमें थोड़ा टाइम लगेगा और ये हमें सोचना चाहिए और ये हमें अथॉरिटी को समझाना चाहिए, जो बदर कह रहे हैं कि ये ना कि आधी अवाम आप जेलों में बंद कर दें इसीलिए कि उनको इस कानून की समझ नहीं थी। जी जी, no, one of our recommendations is please Nighat, yes, absolutely. मुझे एक बात, चूंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, तो एक बात ये ऐड मैं करना चाहूंगी कि एडिंग ऑन टू बदर्स पॉइंट के जो बड़े इदारे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ गुड प्रेसिडेंट कि जब वहां से डेटा लीक होता है, और प्रीवियस पास्ट इंस्टेंसेस में हमने देखा कि बड़े बड़े इदारों से, नादरा और सेफ सिटी और यहाँ से डेटा लीक हुआ। अगर आप लॉ बनाते हैं और आप इन इदारों की प्रेसिडेंट सेट करते हैं, क्योंकि इनके पास वो तमाम रिसोर्सेज हैं कि ये इस कानून को अमल दरामद भी कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी के हवाले से भी देख सकते हैं, तो रिसोर्सेज के हवाले से ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर लॉ के आने के बाद अगर ब्रीचेस होते हैं और जब इनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और वो पूरा प्रोसेस सामने आएगा, आई थिंक इट विल सेट अ गुड प्रेसिडेंट फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, फॉर अदर टेक इंडस्ट्री, कि अच्छा एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ दिस लॉ बेसिकली। मैं एक और बात, सॉरी मेरे इनकी बात से एक चीज और याद आ गई। WTO के जो एग्रीमेंट्स हैं ना, उनके अंदर लीस्ट फेवरेबल कंट्रीज जो हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं ना, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है। ये कानूनी बात है। तो यहाँ भी हो सकता है कि ये कह दें जी कि जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हैं या जो प्राइवेट सेक्टर हैविंग कैपिटल ऑफ इतना मिलियन, दे विल हैव टू कंप्लाई विद द लॉ। फॉर स्मॉल बिजनेसेस उसको छोड़ दें, डेफर कर दें। ये पॉसिबिलिटी है, ये दुनिया में इंटरनेशनल लॉ में भी ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया कि छोटे टोटली सपोर्ट दैट। जी जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। मेरे ख्याल में ये हमें अपने पाशा के रिकमेंडेशंस में भी इसको शामिल करना चाहिए। अभी ये नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल आई थिंक 100% एग्री विद दैट। बल्कि इसमें एक चीज ऐड कर दूं, इसमें ऐसा होना चाहिए कि शुरू में उनको नोटिफिकेशन जरूर आए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हो जाएं, मगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयर होके दे कैन ग्रो एंड इंप्रूव। सॉरी निगत, जी बिल्कुल निगत, सॉरी। आई थिंक वो से कि हम बिल्कुल एग्जाम्प्ट ना करें छोटे भी बिजनेसेस को, थोड़ा थोड़े लेवल पे उनकी अगर कोई फाइन्स आए या कोई इस तरह, तो वो कम लेवल पे रखें। आप नादरा का मुकाबला एक छोटे पिशावरी चप्पल बनाने वाले बिजनेस से नहीं कर सकते। सो आई थिंक इस तरह रखें, लेकिन फुली एग्जाम्प्ट ना करें प्राइवेट बिजनेसेस को भी। जी निगत, आई थिंक द आइडिया इज कि डिफर इम्प्लीमेंटेशन। सो पहले यू फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन करें, पहले लार्ज स्केल में, फिर मीडियम में, फिर स्मॉल मीडियम पे, इस तरीके से। बट completely वो हमारे टेक्नोलॉजी में ना हम MVP करते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग मुजीब, वो जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है ना, तो वो सो उसको मैं आसान अल्फाज में ही कहता हूँ, ईटिंग द एलिफेंट बिट बाय बिट, कि खाना तो हाथी है बट जरा आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा, वरना वो एकदम वही होगा जो कुछ और जगहों पे होता है। तो हम सबको समझने की भी जरूरत है। इसी से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ केस स्टडीज को अखबारों में खबरें लगेंगी, तो लोगों में अवेयरनेस खुद ही बढ़नी शुरू हो जाएगी और सीरियसनेस आनी शुरू हो जाएगी। I wish कि जुनैद साहब didn't have the alternate meeting and had joined us for the entire session, लेकिन हमने इस सेशन को रिकॉर्ड किया है और हम इसकी ट्रांसक्रिप्ट भी उनसे शेयर करेंगे। मेरी उनके साथ रजा सुखेरा काम करते हैं, उनको मैंने कहा था कि जबरदस्ती आपने उनको सुनानी है इसकी रिकॉर्डिंग, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि what the aspirations and suggestions are. But with that, thank you very much everyone, all my Saifullah Saab, Nighat, Badr. It was a pleasure having this conversation with you. Loved your suggestions. You're passionate about the topic, as well as all of you said, I think we fully support doing this, but we want to make sure it's done right. And we will continue to engage with the government from the Pasha platform. We will share our official recommendations with all of you. Saifullah Saab is already aware, whether you are as well. Nighat will share it with you as well for input, ताकि हम tech sector का एक combined view ministry के सामने रख सकें. With that, I would like to thank once again all of you for taking the time out, thanking our audience as well for participating.
Thank you very much, and we'll see you again in the next Candid with Pasha sessions. Thank you. Thank you. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.